आगे साढ़े पहला काम मुझे मिला था जी आप लोग हाँ हम हर साल जाते हैं मोहम्मद रफ़ी अवार्ड पूरे मुंबई में करने वाला अपने सपने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं काम पहले कर लीजिए टाइम मैनेजमेंट टाइम सर इस तरफ आइए थोड़ा पार्टी पीछे आ जाओ सब लोग आ जाओ आप यहाँ मत पूछो अमर तिलक थोड़ा आगे मागे जाओ थोड़ा मागे है ना पीछे आ जाओ चलो नहीं पीठ मागे आप पीछे आ जाओ इस तरफ देखना होगा इन लोगों को ऐसे देखिएगा बोल रहा ना थोड़ा उधर साइड में आ जाए तो मिलेगा नहीं थोड़ा साइड हो जाइए थोड़ा एक्सक्यूज मी हेलो इस तरह थोड़ा हाँ थोड़ा ये बाजू आ जाओ हाँ सर लुक सेंटर सर ताली बजाओ भाई सब लोग सर लुक ये सर लुक हल्का ताई मॅम थोडा क्रॉस ताई इकडे बघा सर एंगल थोड़ा क्रॉस फेस नहीं आ रहा आपका एक्सक्यूज मी आनंद जी किधर है आनंद जी को दिया अरे उधर करो ना भाई उधर ऋषि जी यू रिक्वायर थोड़ा तीन आदमी रहेंगे हाँ आनंद जी आप भी वो बच्चे आ जाए ना आनंद जी पीछे आ जाओ हाँ जी हो गया अच्छा अभी लेकिन हमार मोबाइल दो दिन पिक्चर मार फटाफट फोटो इसको दो तीन यही पूरा ग्रुप का दो दिन फोटो मार ले बस बैग इतना खास नहीं है इसमें बस ना सर थैंक यू सर एक सेकंड सर प्लीज
थोड़ा नाम दिख लीजिए, थोड़ा नाम उसका पूरा नाम दिखाई दे। सर एक मिनट सर चला सर, सर थोड़ा साइड में आइए ना सर थोड़ा सर, थोड़ा मैडम, थोड़ा सर, चलो सर, थोड़ा सा, थोड़ा नाम दिखता है, थोड़ा सा ना वेंकट सर। सब लोग आएंगे थोड़ा फोटो में एक सेकंड सर, अंजी सर थोड़ा थोड़ा सब पीछे आ जाइए, पूरे सब जन आ जाएंगे। And all of the dignitaries will be called on. Get a seat also. It gives me great pleasure that after many decades of Chitraguptji's demise, music lovers of Mumbai thought of remembering him. And what more is proof required that the place where he lived for 32 years, on 14th Road Car, we have been able to create a memorial in respect of a chowk there. I think I'm too small a guy to talk about Chitraguptji's works. I can only tell you that being a great Mohammed Rafi fan, he has recorded the third maximum songs after Lakshmikant Pyarelal and Shankar Jayakishan. To be precise, solos and duets together, he has done 284 songs of Rafi sir. Why is it Rafi sir? Which I have a great welcome, welcome Udit Narayan ji. आप आइए, please come. एक additional chair please. आइए ना. आपका गाया हुआ नोटेशन बोर्ड पे देखा आपने? बैठिए. So with these few words, let me give this mic to host Milind, who will carry forward the function from now on. Thank you very much. A very good morning to all of you. We are here today for the inauguration of the chowk of our father Chitraguptji, who lived here on 14th Road. When I go back in time, I remember that the year I was born, 1959, was the year that Papa shifted here on 14th Road. And from then on, he lived here until his death on 14th of Jan, 1991. And it's an irony that he died on 14th of Jan, which is a Sankranti day, Makar Sankranti, when people fly kites in the sky, and he made the best two songs on kites, Chali Chali Re Patang Meri Chali Re, and Ye Duniya Patang. And on that day, he left us and flew away like a kite. But his remembrance, उनकी यादें हमारे दिल में अभी भी हैं, हमेशा रहेंगी. And I remember after I was born in 59, 14th Road is the road where Papa and Mummy took me or Anand or our two sisters, Sudha and Savita. That's Sudha sitting in front. Savita is no more. So we learned to walk on the 14th Road. चलना इस रोड पर ही सीखे. Papa composed some of his most beautiful songs right here in Prabhat building, 14th Road.
And I think I'm very happy that we have a chalk in his name here, where he worked and gave such hit songs. Most of our music also was composed on 14th Road till we lived here, and we have great memories of this place. I am missing two people here. One, my dad, because he's no more with us physically, but he's here in spirit. Raju, come. And the other person that I'm missing, Zuchi, come. Shirley. So I'm missing my dad a lot, and I'm missing my mother. My mother stays with me. I've shifted to Powai now. She's going to be 90 years in December, and she's no more in a physical or a mental condition to get here. A couple of days back, I thought I would take the help of an ambulance and a wheelchair and try and get her, but it simply doesn't seem possible. So I think she's giving us all her Ashirwad. She's bedridden. She's giving us all Ashirwad from the bed itself. Lastly, I would like to thank all the people assembled here. I worked very hard towards the making of this job, and I'm very thankful to Ashish Shelar ji, Sharad Ugade ji, Alka Kerkar ji, and the person who introduced the show here, Mr. Venkat, who's been instrumental in helping me out with this job. Welcome Abhijit, welcome Sameer. I thank everybody for this day. Rafi Saab's family. Rafi Saab's family. I'm also thankful. I'm also get some chairs, please. We are falling short of chairs. Welcome Rafi Saab's family here. Welcome them. Welcome Abhijit. इतनी जगह में जगह तो बड़ी रखनी चाहिए। फर्स्ट को उठा रहे भाई ज़्यादा बाइक ज़्यादा बाइक बड़ा सा I'm lastly, I am very, very thankful to Mr. Vijay Zaveri, the owner of this bungalow, who allotted this space to us to save us if it rains. And though the space is falling a bit short, the guest list is pleased. Thank you everybody for coming. Now I pass on the mic to Anandji. Anandji will speak something to you on this occasion. Good morning everybody. I think Milind has spoken about everything. Just a few things more I would like to share is that in this very place, Prabhat building, where Dad composed so many songs, we have been so lucky to have seen greats like Rafi Saab, not hundreds but thousands of times coming for his rehearsals. Thousands of times. Every
week 3 or 4 times his car used to be standing here. और वो टाइम के बड़े पक्के थे तो 8 o'clock sharp the bell used to ring. Then we've seen Kishore Da, he shared a very good rapport with my father which very few people knew. And they used to come sometimes बिना काम के ऐसे ही आ जाते थे घर पे बैठ के, you know, just sitting chatting. Lata auntie, Asha auntie, all of them. And great writers like Sahir Saab, Kaifi Saab, Majru Saab, Prem Dhawan ji, everyone. And we are so happy that we carry the legacy forward. So you know, right from Rafi Saab to Udit Narayan to Abhijit to Sonu Nigam, everybody used to be a part of this 14th Road. So those are some lovely memories. I think I can go on and on, but I wouldn't like to take much of your time. So thank you so much. I give my mic to somebody else. Now I request Ashish Shelar ji to say a few words, please. Thank you. आज के इस चंद्रगुप्त चौक के कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए उपस्थित हमारे प्रमुख अतिथि सम्माननीय जावेद साहब, आनंद जी भाई और यहाँ पर उपस्थित आनंद जी, मिलिंद जी, सुदेश भोसले जी, ललित जी, उदित नारायण जी, हमारे अभिजीत जी, समीर जी, रफ़ी परिवार के सभी सदस्य, सबके नाम लूँगा थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए सभी सम्माननीय अतिथि। मैं जब मुझे इन्होंने माइक दिया तो मिलिंद जी भाई मैं ये सोच रहा था कि मुझे माइक दिया तो कोई तो ये ज़रूर कहेगा सुरों की इस महफिल में बेसुरे का कहना। तो इसके लिए सुर बनाने वाले सब लोग यहाँ पर है, सुर गाने वाले सब लोग यहाँ पर है। लेकिन मैं इस क्षेत्र का, मैं और अलका तय कहकर हमारी नगर सेविका, हमने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं। हमारे पास जब प्रस्ताव इन साहब ने लाया और मिलिंद जी भाई की हमारी बात हुई और हमें जब पता चला कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर इतनी बड़ी हस्ती यहाँ पर रहती थी, उन्होंने इतना बड़ा इतिहास यहाँ पर बनाया और लोगों के जीवन में एक तरीके से आनंद के, सुख के वो क्षण अपने संगीत के कारण लाए, उस महान व्यक्ति का कहीं ना कहीं मेमोरीज होना चाहिए और वो छोटा सा काम मैं और अलका तय ने पूरा करने का प्रयास किया। और इसके लिए ये काम हमने भी किया, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। ये आपकी ताकत है, पूरे भारतवर्ष के म्यूजिक लवर्स की ताकत है। और इसके लिए जो, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 1991 में उनका देहावसान हुआ और तब से लेकर आज तक 2017-18 तक भी हम उनको याद करते हैं, उनके म्यूज़िक को सुनते हैं। और सबसे बड़ा मैं भी फैन मोहम्मद रफ़ी साहब का हूँ और इसके लिए आपने कहा कि रफ़ी साहब के लिए भी उन्होंने इतने बड़े गाने बनाए। और सौभाग्य इस क्षेत्र का ऐसे है कि जावेद साहब हमें मौका ये बार बार मिलता है। आर.डी. बर्मन साहब भी हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते थे, ऐसे ही म्यूजिक लवर हमारे पास है। उन्होंने कहा आर.डी. बर्मन साहब के नाम का कुछ मेमोरीज यहाँ पर होनी चाहिए। आर.डी. बर्मन चौक करने का मौका मिला। यहाँ से आगे थोड़ा बढ़ेंगे, अरुण पौडवाल जी के नाम का चौक यहाँ पर बना है। तो ये खार, बांद्रा, सांताक्रूज, ये पूरा इलाका जिसका और फिल्म इंडस्ट्री का नाता पड़ा है। और सुदेश जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे अच्छे इस कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, वैसे मीडिया वाले यहाँ पर इतने बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं, इसके कारण दौड़ाते भी हैं। मैं अभी जावेद साहब को कह रहा था कि भाई आपके बेटे ने एक ट्वीट डाल दिया, तो सेंट एंड्रूज रोड पर चल रहे थे और खड्डा वहाँ पर दिखा, और पूरा खड्डा दिखा तो पूरा मीडिया हमारे पीछे लगी कि भाई देखो कि इतने रास्ते में खड्डे तो है ही है। उसको आज उसका मैं विषय नहीं ले रहा, लेकिन काम करना, अच्छे काम करना और अच्छे काम के लिए दौड़ना, ये तीनों चीज़ें, ये सब आप और आपके कारण हम कर पाते हैं। इसके लिए आप सबका धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार उन महान व्यक्ति और महान आत्मा के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Javed sir, please, a few words. आज ये काम जो आधा था वो पूरा,
आधा काम तो चित्रगुप्त कर गए थे, आधा काम आज। असल में वो 2 जगह रहते थे, उनके 2 एड्रेस हैं। एक एड्रेस ये और एक है हिंदुस्तान के करोड़ों संगीत प्रेमियों का दिल। वहाँ तो अपना नाम खुद ही लिख गए थे, आज इस दूसरे एड्रेस पर भी उनका नाम लिख दिया गया है। ये बहुत अच्छा और मैं यहाँ आपका और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बहुत ही टच हूँ कि इनके बेटे आमतौर से आजकल ख्याल रहे अपने बुजुर्गों का, अपने माँ बाप का ज़रा कम होता है, लेकिन किस लगन से, किस मोहब्बत से इन्होंने सबको बनाया है, वो बहुत अच्छी बात है। मगर दरअसल सिर्फ ये 2 ही उनके बेटे नहीं, वो तमाम लोग जो हिंदुस्तान के संगीत के बारे में जानते हैं, जो आज संगीत बना रहे हैं और वो संगीत इस धरती से संबंध रखता है, सब चित्रगुप्त जी हैं। ये वो चित्रगुप्त जी एक प्रतीक है, एक दौर, एक अकेले इंसान नहीं, वो इंस्टीट्यूशन, वो उस दौर का प्रतीक है जब हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति एक पेड़ की तरह ऊपर तो बढ़ रही थी और पेड़ की शाखें दूर दूर तो पहुंच रही थी, लेकिन पेड़ अपनी जड़ों से नहीं कट रहा। हमारा वो संगीत जो है, जब आप गौर से सुनते हैं तो आप ये देखते हैं कि जहाँ ऑर्केस्ट्राइजेशन में हमने वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस लिए, उनसे बहुत कुछ सीखा भी और अपनाया भी और अपने ढंग से अपनाया, वहाँ गीत की आत्मा जो है वो हिंदुस्तान, जो उसकी धुन है वो या फोक से आई है या शास्त्रीय। आजकल पेड़ तो बहुत ऊंचा हो गया है, लेकिन डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि इसकी जड़ें टूट रही हैं और हमें इन जड़ों का ख्याल रखना। जब आप अब नहीं रहते तो फिर किसी के नहीं रहते, तो हम न सिर्फ एक श्रद्धांजलि दें एक नाम को, बल्कि उस काम को, उस विद्या को जो उन्होंने हमें दी, वो शिक्षक इस सड़क से, फोर्टीन रोड से, जिस तरह से मिलेट जी का रिश्ता है, एक रिश्ता मेरा भी। मिलेट जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि 14 रोड पे इन्होंने चलना सीखा, मैंने भी 14 रोड पे ही चलना सीखा। मैं आया तो बम्बई 19 बरस में था, लेकिन ज़िंदगी में जब पहली बार ठीक काम मिला तो 14 रोड पे डाके मेंशन में जितने फिल्म का ऑफिस होता था वहाँ इनके बगल में था। तो सच बात यह है कि सलीम साहब ने, मैंने फिल्म इंडस्ट्री में चलना इसी सड़क पे सीखा। हम लोग का जो सिटिंग रूम था उसकी खिड़की इनके घर की तरफ खुलती थी, हमें मालूम होता था कि आज म्यूजिक सिटिंग किसके साथ है, चित्रगुप्त जी की, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आज मुझे इन लोगों ने बताया कि इन्हें भी इंटरेस्ट था कि यहाँ क्या काम हो रहा है। तो भाई पड़ोस में टाक झाक तो हमारा कल्चर का हिस्सा है और बहुत बहुत ही खुशी हुई और मैं वाकई आभारी हूँ आपका कि आपने इस तरह से हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग के लिए मदद की। मैं तो आपसे एक मदद सबके सामने और भी मांगती हूँ। एक हम लोगों ने वहाँ पर, मेरा जो भी फंड था, जो एमपी होता है उसे 5 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं और उसे होता है कि किसी काम में वो लगाए। मैं क्योंकि प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन था तो मेरे पास फ्रीडम थी कि मैं भारत के किसी भी कोने में, किसी भी स्टेट में, किसी भी शहर में लगा सकता। लेकिन मैंने वो सारा पैसा एक परमिशन लेके, आमतौर से तो इंस्टॉलमेंट में आता है, सारा पैसा स्पेशल परमिशन है राज्यसभा से लेके, वाइस प्रेसिडेंट साहब से लेके, जुहू को पूरे का पूरा पैसा। वहाँ पर हमने ऑलरेडी एक गार्डन बनाया है, एक एम्फी थिएटर बनाया है और हम 2 सड़कें बना रहे हैं जो समझिए 6 किलोमीटर की होगी। नाले के दोनों तरफ नाला क्लीन होगा, इतना कि पानी उसका साफ होगा, उसमें कमल के फूल होंगे। कमल के फूल तो अच्छे ही लगते और वहाँ पर हमने दोनों तरफ के जो रास्ते हैं उन पे हमारे जो लोग इस
एरिया में पैदा हुए हैं, बड़े आज नहीं है हमारे भी, उन सब के स्टैचू लगेंगे कि एक रोड ऑफ फेम बने। अब वो तैयार हो गया है सर आज। और एक गार्डन जो हमने किशोर कुमार बाग नाम रखा है। और हम लोग कभी कभी क्या होता है कि भूल जाते हैं कि ये जो धरती है महाराष्ट्र, उसमें कैसे कैसे लोग पैदा हुए, ये हमें याद नहीं। मैं तो आया था नॉर्थ से, हम लोग सब अपने अपने कुएं में खुश रहते हैं, हम समझते हैं बस हम ही हम हैं, तो हम हिंदी उर्दू के अलावा किसी को समझते ही नहीं थे कुछ। जब यहाँ आए तो मुझे पहली बार मालूम हुआ कि मुझे ये मालूम हुआ कि विजय तेंदुलकर तो वो घमंड जो था अपनी भाषा का और अपने कल्चर का, वो हिल गया। इसलिए कि जिस तरह के प्लेज इन्होंने लिखे हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं एकदम उन्हें प्रणाम करता हूँ कि इतना बड़ा लिटरेचर है। और ये हमारी बदनसीबी है कि ये भाषा जो बनी है दुनिया में, कि मैं बात करूं और आप समझें और आप बात करें तो मैं समझूं, ये भाषा ही दीवार बन जाती है कभी कभी, कि हम भाषा की वजह से समझ नहीं पाते कि कौन काम है। तो ये दूसरा जो वो एम्फी थिएटर है वो हमने विजय तेंदुलकर साहब के नाम से रखा। अब 2 बरस होने को आ रहे हैं, ना किशोर दा ना विजय तेंदुलकर साहब का हमें BMC से क्लियरेंस मिला कि यहाँ के रख सकते। 2 साल से हम कोशिश करें। अब बताइए कि ये तो हमारे धरोहर हैं, इनके ऊपर तो हम लोग को नाज होना चाहिए। और एक पार्क और एक एम्फी थिएटर का नाम रखने के लिए हमें 2-2 साल कोशिश करते रहना पड़ता है, तो बड़ी गलत। तो अब मैं ये जिम्मेदारी आपको सौंप रहा हूँ, आज से मेरी नहीं, ये काम आप करवाएंगे। तो मैं एक बार फिर बधाई देता हूँ उन तमाम लोगों को जिन्होंने कोशिश की और ये सही काम किया। इसलिए कि जब हम अपने कलाकारों को, अपने लेखक को, अपने कवि को, अपने गायक को इज्जत देते हैं तो हम उन्हें इज्जत नहीं दे रहे, उन्हें तो इज्जत की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े। हम अपने को इज्जत दे रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि हमें इतनी अकल है कि हम समझ सकते हैं कि वो क्या। और अभी आपने जिक्र किया रफ़ी साहब का, और उनका रफ़ी साहब ने तो हज़ारों गाने गाए हैं और कैसे कैसे गाने गाए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ हालांकि बड़ा मुश्किल काम है कि रफ़ी साहब के बेहतरीन गानों की लिस्ट बनाई जाए, आसान काम नहीं। वो इतने बेहतरीन गाने, इतने सारे, लेकिन कोई भी लिस्ट बनाए और कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी लिस्ट बनाएगा तो उसमें चित्रगुप्त जी के गाने क्या करे गाना। मैं समझता हूँ म्यूजिकली, राइटिंग के हिसाब से, रेंडरिंग के हिसाब से रफ़ी साहब के चंद जो बिल्कुल ही परफेक्ट गाने उनमें से। और एक बार आप सबको बधाई, अलका जी को सलाम। देर लगी आने में, उनको शुक्र है लेकिन आए। बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद जी भाई। यार अच्छी जगह फंसा हुआ है, मेरे को जान दिग्गज लोग सब बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद बात में क्या बोलूं, लेकिन फिर बोलना तो पड़ेगा ही। चित्रगुप्त जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए, नाम जो गुप्त था उन्होंने गुप्त अपने आप को रखा। तो आज यहाँ में मुझे बैठने को मिला है, इन लोगों को बैठने को मिला है, उसमें चित्रगुप्त जी का बड़ा काम है। नागिन से लोग समझते हैं कि कल्याण जी भाई ने नागिन में बीन बजाई, ऐसी बात नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी नाग पंचमी से। नाग पंचमी में एक गाना था, वो नाग कहीं जा बसियो रे, मेरे पिया को न डसियो रे, समझे, हाथी देश से उठकर। तो वो गाना इन्होंने पहले रिकॉर्ड किया था। उसके बाद उनको पता चला कि ऐसी कोई बीन बजती जिससे गाने में माल मिलता है, तो फिर जालन साहब ने नागिन बनाई, समझे। तो ये बड़ा काम उन्होंने किया, जिससे हम लोग बनिए में से म्यूजिक डायरेक्टर बने। बहुत खुशी की बात है कि बच्चे जब अपना कुछ काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद भी होती है, कभी कभी उम्मीद बेकार भी हो जाती है, लेकिन आप लोगों ने काम पूरा किया। चित्रगुप्त जो गुप्त थे उनको अपने जागरूक करके हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है। फिर आप कुछ करें और कुछ करते रहिए। छोटे करके लोग अच्छा काम करते हैं, करिए आप दोनों। इसको ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।
सुदेश जी अपनी आवाज़ में बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम सुदेश भोसले है। आनंद जी मिलन जी ने मुझे आज यहाँ बुला के जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बहुत बड़ी हस्ती का नाम दिया जा रहा है इस रोड को, तो मैं जिन्होंने भी कोशिश की और जिनकी वजह से ये नामकरण हो रहा है उनको शुक्रिया अदा करूँगा। आशीष शेलार जी और जावेद साहब, आनंद जी भाई, आपको प्रणाम करते हैं और कुछ नहीं कहूँगा। चले उड़े जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, लेकिन आपका नाम कयामत तक लोग याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद। थैंक यू। Anybody else? अलका जी। Well, it is a real pleasure that we are commemorating Chitragupta ji, the doyen of the music industry, and it is a matter of pride that all these stalwarts who have given a rich heritage to the music industry, to the film industry, have been living in our locality, Bandra West, and it is really a great pleasure that all of you have come to offer the homage to this departed soul. मैं आशीष जी को धन्यवाद देती हूँ कि उनके मराठीत बोलू पर माननीय आमदार आशीषजींच्या गायडन्समुळे हे काम आज होऊ शकलं. आमचे वॉर्ड ऑफिसर शरद उघाडे यांनी देखील खूप मेहनत घेतली आहे. सगळी BMCची टीम इथे आहे ज्यांनी खूप एफर्ट्स करून आमचा हा चौक थोडासा लेट झाला, परंतु त्यांचं सेंटेनरी इयरमध्ये हे काम झालं आणि असंच त्यांची मेमरी नेहमीच इथे सगळ्यांच्याच मनात राहील. त्यांची जर गाणी ऐकली आत्ताच सुदेश भोसले गायले in the golden voice of Mohammad Rafi Saab, the Lord Rajendra Panchi. He has given such classical numbers that they will become immortal in history. Thank you. दोनों भाई आनंद और मिलिंद को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इतना खूबसूरत काम किया उन्होंने। और चित्रगुप्त जी हमारे पूर्वज और गुरु हैं और उनके गाने में अभी जब भी सुनता हूँ, अभी रास्ते में भी सुनते सुनते आ रहा था तो सलाम करने का दिल करता है कि कितने खूबसूरत और सुरीले गाने दिए हैं और एक अलग कलर के गाने दिए हैं उनके। बहुत ही आज खुशी का दिन है कि उनके नाम की चौक बनी है और शेलार जी और अलका जी को बहुत बहुत थैंक यू फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल डीड। थैंक यू। जैसे कल्याण जी भाई का नाम चित्रगुप्त जी ने किया, ऐसे ही और जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम हमें काफी पापड़ बेले देने की कोई बात नहीं बनी, इन्होंने मार दिया एक झटका। आनंद जी भाई, एक चीज़ कहना चाहूँगा तो मैं सोचा था सस्पेंस रखने, अभी जावेद साहब से जिक्र किया मैंने, उनकी चीज़ जाके देख सकते हैं। चौक में बाहर नोटेशन एकदम सही है, विद ट्रेबल क्लेफ, टाइम सिग्नेचर 4/4 और सिर्फ 4 बार लिखा हुआ है। जो लोग म्यूज़िक पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। इट इज़ टा 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 टा। सो पापा कहते हैं इज रिटन देयर, यू कैन रीड इट एंड दैट्स आवर ट्रिब्यूट टू आवर फादर चित्रगुप्त जी। सम्माननीय आनंद भाई जी, आनंद जी भाई जी, कल्याण जी भाई, सम्माननीय जावेद साहब, आशीष जी, अलका जी, ललित जी, अभिजीत जी, सुदेश जी, हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी यहाँ एक्टर्स हैं, डायरेक्टर समीर जी हैं, अरे अलका जी भी सामने हैं,
लेट आई तो जरा समझ में नहीं आया। आपकी समझ में नहीं आया, बेटा ना। बाकी सब कुछ समझ में आता है थोड़ा सा, लेकिन अलका जी के बारे में मुझे समझ में नहीं आता है। यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं मैं प्रणाम करता हूँ। चित्रगुप्त साहब एक वेटरन संगीतकार थे और उन्होंने संगीत में एक इतिहास रच के चले गए। मेरे पिता तुल्य थे। जितना प्यार वो आनंद मिलन जी को करते थे उतना ही प्यार मुझे भी करते थे। और आज मैं जहाँ हूँ, जिस तरह हूँ, जो भी हूँ, सिर्फ चित्रगुप्त साहब की वजह से। चित्रगुप्त साहब नहीं होते तो मुझे आनंद मिलन नहीं मिलते, और मुझे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा नहीं मिलता, और मैं गाँव वापस चला जाता। तो मेरे ऊपर उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं इतना ही ज़रूर कहूँगा कि आज ऐसे वेटरन संगीतकार के नाम से यहाँ चौक बना है, और उसके लिए जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया है, आशीष जी, अलका जी और इनसे जुड़े जितने भी तमाम लोग हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। जावेद साहब ने और आशीष जी ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं तो मुंबई आया था अपनी मंजिल ढूंढने। मैं भी एक राहगीर था, एक पथिक था, स्ट्रगल करता था और पैदल चलना। मेरे खाते में इतना लिखा हुआ है कि जब भी सिद्धि विनायक के लिए बोलता हूँ कि मैं पैदल आऊँगा, तो सिद्धि विनायक बाबा बोलते रहने दे, तेरा ऑलरेडी अकाउंट में बहुत बैलेंस है, इतना पैदल चला, मुंबई की हर सड़क तुमको मालूम है। लेकिन 14th रोड, बैंड्रा, अगर मैं कहूँ यही मेरा मुकाम था और यही मेरी मंजिल थी। मुझे मुंबई में कुछ नहीं मिला, अगर मिला तो मुंबई में बैंड्रा, खार, स्पेशली 14th रोड से। मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचाया पंचमदा ने, आर डी बर्मन ने। लेकिन फिर जैसे उदित जी ने बताया कि डाल पे पंछी खुद देर के लिए होता, तो वो फिल्म रिलीज हुई, मैं फ्लॉप हो गया, पर बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। लेकिन चलना तो मैंने सीखा था, लेकिन मुझे ठहरा दिया, मेरी मंजिल पे बैठा दिया 14th रोड खार में आनंद मिलन और चित्रगुप्त साहब। मेरी श्रद्धांजलि, ये बोर्ड आज छोटा सा बना है। मैं चाहता हूँ कि आनंद मिलन आप लोग इतना बड़ा काम करो, ये बोर्ड और बढ़ जाए और हम सब लोग इस रोड के साथ जुड़ जाएं। जय 14th रोड। अलका जी, एक्चुअली चित्रगुप्त जी के लिए कुछ कहने के लिए शब्द मेरे पास कम है। कितनी बड़ी हस्ती थे वो तो सबको पता ही है, लेकिन मेरे लिए चित्रगुप्त जी से चित्रगुप्त जी नहीं फादर फिगर थे। उनसे जितना प्यार मुझे मिला है, जितना आशीर्वाद मिला है, वो मैं बता नहीं सकती। बहुत बहुत उनका आशीर्वाद मिला मुझे। और जैसे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, इन्होंने सिर्फ आनंद मिलन को नहीं कहा, मुझे भी कही थी ये बात कि मैं कह सकती हूँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी, ये उन्होंने मेरे लिए भी कहा था। और वाकई 14th रोड बहुत एक लैंडमार्क है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरीडे मैं आती थी, रिहर्सल्स होते थे। उन दिनों भोजपुरी गानों का दौर चला हुआ था ज़बरदस्त, और बहुत से गाने गाए मैंने, मतलब ऑलमोस्ट एवरीडे रिकॉर्डिंग होती थी फेमस तारदेव में। कभी कभी दिन में 2 गाने भी होते थे चित्रगुप्त जी के ही, और आनंद मिलन साथ होते थे। तो हमारी एक म्यूज़िक के बियॉन्ड भी एक दोस्ती हो गई थी हमारे परिवारों की। और हम लोग अक्सर रिहर्सल के बाद चित्रगुप्त जी, आंटी जो है चित्रगुप्त जी की वाइफ, आनंद मिलन, मीना, और मेरे मम्मी पापा, मैं, मेरा भाई, हम सब बैठते थे और बहुत बढ़िया मटन बनता था उनके वहाँ, मुझे याद है अभी भी। तो मटन और खाना पीना भी होता था, गाना भी होता था। और
चित्रगुप्त जी हमेशा कहते थे कि आज मैंने आनंद मिलन को बहुत डांटा। ये क्यों डांटा आपने? कि अलका के होते हुए उस सिंगर ने क्यों गाया तुम लोग का गाना? ये तो गलत बात है। तो मतलब उस इतना प्यार था उनका मेरे ऊपर, मैं क्या बताऊँ। और उदित जी ने जब मेरे बारे में कुछ बोल ही दिया है तो मैं भी कुछ बोल दूँ कि जब हमारे ये भोजपुरी गाने रिकॉर्ड होते थे तब उदित जी अक्सर आके वहाँ पे रिकॉर्डिंग में, उदित जी और मैं हम दोनों ही नए नए थे और चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद हम दोनों पर बहुत था। अच्छा, वो उसकी बात बाद में करेंगे। तो ये उदित जी आकर वहाँ पर बोलने लगते थे कि अच्छा प्रोड्यूसर जो ये मैं भी नई थी, ये भी नए थे, तो प्रोड्यूसर के सामने चित्रगुप्त जी को ये कन्विंस करना पड़ता था कि नहीं ये दोनों अच्छा गाएंगे गाना, तो आप चिंता मत करिए, ये नए हैं सिंगर लेकिन अच्छा गाएंगे। तो उदित जी आके खड़े हो जाते थे कि नमस्ते नमस्ते, फिर कहते थे कि वो क्या है असल में आज थोड़ी मेरी वॉइस में थोड़ी सी आज तो चित्रगुप्त जी है वो नाराज हो जाते थे कि अरे ये क्यों अपना मुंह खोल रहा है। तो प्रोड्यूसर को पता लगेगा कि गला खराब है तो फिर बोलेगा ये किसको ले आए आप नए सिंगर को जिसका गला भी खराब है। तो चित्रगुप्त जी बोलते थे उनको, बोलते थे कि उदित जी के लिए बोलते थे, उदित जी बोलते थे तुम चुप रहो, मुंह खोलो तो सिर्फ गाना गाओ, बात मत करो। तो मुझे ये बात उनकी इतनी क्लियर याद है। और हम लोग तुम सिर्फ मुंह खोल के गाओ, बात मत करो। और आज तक मैं बोल रही हूँ तुम सिर्फ गाओ, चुप रहो, लेकिन चुप नहीं रहते हो। बट चित्रगुप्त की बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। अक्सर मैं जब बैठती हूँ तो उनके बारे में सोचती हूँ और कितना प्यार करते थे, कितने सिंपल, हम्बल और प्यारे इंसान थे। ऑफकोर्स कंपोज़र क्या थे वो तो सारी दुनिया जानती है, बट मैं ये सच कहूँ तो जितने मुझे अपने पापा याद आते हैं नहीं। समीर जी आइए। मंच पे आनंद जी भाई, जावेद साहब, आशीष शेलार जी और अलका जी, ललित, आनंद मिलिंद दुबे जी और सुदेश भोसले, बहुत सारे लोग, ये सब इंडस्ट्री के ही लोग हैं हमारे, सब भाई दोस्त। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा भावुक हो गया हूँ क्योंकि मेरा इस परिवार से 2 पीढ़ियों का रिश्ता है। मैं जब यहाँ आया था, संघर्ष कर रहा था, तो मुझे पहली बार जो मौका मिला हिंदी फिल्म में गाना लिखने का, उषा खन्ना जी जो 16th रोड पे थी, वहीं से मेरा हाथ पकड़ के डैडी मुझे यहाँ लेके आए और चित्रगुप्त जी से मिलवाया कि ये बेटा मेरा है, मगर मुझे पता है उसको ज़िंदगी यहीं से मिलेगी। चित्रगुप्त जी मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, मैं तो भोजपुरी फिल्में करता हूँ, कि मेरे 2 बेटे हैं आनंद मिलिंद, ये कुछ कोशिश कर रहे हैं संगीतकार बनने के लिए, तो तुम इनके साथ काम करो, शायद इनके साथ तुम्हारा भविष्य भी बन जाए। हमने काम किया और मेरे संघर्ष के दौर में मुझे याद है उदित, मैं और अलका ने मैक्सिमम भोजपुरी गाने लिख के किसी तरह से अपना जीविकोपार्जन किया। उसके बाद आनंद मिलिंद के साथ मैंने काम शुरू किया और बहुत सारा काम हम लोग किए। एक सिटिंग मुझे बहुत याद आती है। एक मौका ऐसा आया कि अब हमको कोई ना कोई फिल्म मिल जाएगी ज़रूर, तो इन दोनों पिताओं ने ये कहा कि आप लोग जो बना रहे हैं वो पहले हमको सुनाइए। तो हमको लगा कि हमको ऑस्कर में जाने का इनविटेशन मिला है। अब हमारी हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे याद है कम से कम 6 बार तो मैं बाथरूम गया था उस दिन, कि अगर प्रोड्यूसर को सुनाना होता तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती, मगर इनको सुना रहे हैं जो सब जानते हैं, ये तो हमारी हर गलती पकड़ लेंगे। आए, हमारे गाने उन्होंने सुने और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लोगों में कुछ बात तो है मगर मेहनत बहुत करनी पड़े। खैर वहाँ से थोड़ी उम्मीद की किरण जागी और आनंद मिलिंद को एक फिल्म मिली और मुझे भी, मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी की दूसरी फिल्म थी अब आएगा मज़ा, वहाँ से हमारा कैरियर शुरू हुआ। आनंद मिलिंद को एक फिल्म मिली क़यामत से क़यामत तक, जिसका गाना अभी गाया जा रहा था, पापा कहते हैं, और बहुत बड़ी हिट हो।
मैं अंदर से बड़ा दुखी हो गया कि यार ये पिक्चर हिट तो हो गई मगर इसमें गाने जो है मजरू साहब के हैं। तो जो मैंने डोर पकड़ी थी वो डोर तो मेरे हाथ से गई, क्योंकि ये फिल्म हिट हुई तो सारे जो प्रोड्यूसर्स आएंगे वो मजरू साहब और आनंद मिलिंद को साथ लेंगे। तो आनंद से मैंने कहा कि आनंद यार क्या करूं, अब तो मुझे बहुत मेरी नाउमीदी जो है वो आखिरी सीमा पे है। आनंद ने कहा कि देखो घबराओ मत, जितनी फिल्में मिलेंगी वो सब मजरू साहब तो करेंगे नहीं, क्योंकि मजरू साहब की एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसमें से एक आध फिल्म तो तुमको मैं दिलवा ही दूंगा। और लगली उसके बाद दूसरी फिल्म जो इनको मिली वो थी दिल, और दिल मुझे मिली और वहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई। तो बहुत सारी यादें हैं और मेरे ख्याल से ये पूरा इलाका जो है, ये 14th रोड और 16th रोड, यहाँ ऐसा लगता है कि संगीत कला ये कहीं ना कहीं गलियों में छुपा हुआ है। मदन मोहन से लेके, चित्रगुप्त से लेके, उषा खन्ना से लेके, मैं किनका किनका नाम लूँ, नौशाद साहब भी, मतलब आप किसी रफ़ी साहब की फैमिली यहाँ आई हुई कि जितने, ऐसा लगता है कि ये गलियाँ नहीं, ये सुरों का, कला का कोई मंदिर है। तो मैं तो जब इधर से गुजरता हूँ इसको प्रणाम करता हूँ और आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ख़ासतौर से आनंद मिलिंद को कि इतनी मेहनत करके उन्होंने पिता के लिए इतना सब कुछ किया। जैसा जावेद साहब ने कहा कि आजकल के बेटे वैसे कम सोचते हैं बुजुर्गों के बारे में, मगर इन्होंने सोचा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने इसके लिए सहयोग किया, और ख़ास तौर से आशीष जी और अलका जी, और यहाँ पे तमाम BMC के जो लोग हैं उनका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच। We were 4 of us, Savita, Sudha, Anand, Milind. Savita is no more. Sudha, please speak. Just a second. आनंद और हमारी बड़ी बहन सुधा। This is a very, very emotional moment for us, and there are so many memories linked to this road, Prabhat building, where we all grew up. Anand and Milind were little boys, and Savita and myself took care of them, while Papa and Mummy looked after us really well. A very close-knit family we were. Very sad that Papa had to go away in 1991, and very worse than that was when we lost our younger sister in 2010. But the one thing which really makes me feel very sad today is that Mummy could not be here. I think if Mummy was here, she would have really liked to see all of us. Milind tried hard and wanted to bring her here, but she's not physically fit to travel. And then I don't think she even probably would understand the importance of today and things like that. Let's see, hopefully Milind should be able to bring her one day and show her this place. Yeah, probably we will do that. Yes, it's a very nice feeling to be here. I've come with my son, my daughter-in-law, my granddaughter also, so they would all be witnessing this very important function. And Mr. Venkataraman, I think we all owe a lot to for helping us remember. I only hope that this coming forward can be remembered always. Thank you. Please. Have a right to speak because, as I said earlier, her great legendary father was so much attached to Muhammad Rafi Saab. It is in the fitness of things that from Rafi's family, Naseerin ji will speak a few words. इनको थोड़ा साइड करो मैम, आप सबों साइड हो जाइए प्लीज। I'm saying कि आप लोग पहली बार मिल रहे हैं और बहुत अच्छी है। एक एक्चुअली हैव नो वर्ड्स, इतना हम कह सकते हैं कि आपने अपने फादर के लिए क्या है, हम लोग ने पूरी कोशिश किए हैं, और वो भी मिस्टर वेंकट की वजह से। He is the one who has actually taken, so much efforts to bring out that
chopra. It was, I mean, बहुत मेहनत लगी पर उनकी वजह से प्रिपेयर इतने सालों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने 1 साल के अंदर आप सबकी मदद से, आप लोगों की मदद से अब बहुत खुशी हो रही कि आप लोगों के लिए उन्होंने इतना किया है एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी प्राउड टू बी अमॉन्ग्स्ट ऑल ऑफ यू। बहुत ही खुशी हुई सबसे। थैंक यू सर। मुकेश जी, सुनील, दर्शन फैमिली के साथ भी पापा वॉच है। जस्ट कपल ऑफ हेलो, सुनील दर्शन। कुछ देर पहले समीर जी ने कहा कि इनके दो पीढ़ियों ने इस फैमिली से गहरा संबंध संगीत क्रिएट करने में रखा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरी फैमिली जो है वो 3 पीढ़ियों से चित्रगुप्त जी और आनंद मिलन के साथ हमने काम किया है। मेरे नाना थे मिस्टर नाना भाई भट्ट, मेरे फादर थे मिस्टर दर्शन सफरवाल and who made movies, Samson and Naya Sansar for the movies. No, with Chitragupta ji was associated. I think Nana Bhai did the highest number of movies with Chitragupta ji. And फिर मुझे सौभाग्य मिला तो आनंद मिलन के साथ मैंने 3 फिल्में बनाई, लुटेरे, अजय और जानवर, and they were very successful. चित्रगुप्त जी की ब्लेसिंग्स थी हमेशा हमारे साथ, जिसके कारण शायद they created some remarkable tunes for me as well. It's really been a very long relationship which I hope to even take further. चित्रगुप्त जी का म्यूजिक जहाँ तक था वो कमाल का म्यूजिक था। मुझे हमेशा एक गाना याद आता है उनका, दिल का दिया जला के गया। लता, I think which is Lata ji's amongst the best renditions that I've ever heard. और इसके अलावा उन्होंने एक गाना मेरे फादर की फिल्म नया संसार के लिए बनाया था, हेमंत कुमार जी ने जो गाया था, दिन रात बदलते हैं हालात बदलते हैं। यस, रिमार्केबल वर्कर्स। आनंद कुछ कम कहेंगे लेकिन उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इन सारे म्यूज़िक में। आई थिंक वी ओ देम अ लॉट, वी ओ दिस टैलेंट्स अ लॉट। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर दिस। मेरा सबसे पहले प्रणाम चित्रगुप्त जी को और तमाम बड़ी हस्तियाँ जो सामने बैठी हैं उन सबको। मुझे बेहद खुशी है कि मैं आज इसका हिस्सा बना। मेरा संबंध म्यूज़िक सुनने से रहा, मिलन जी का बनाने से रहा, तो मुझे लगता है कि मैं संगीत के काफ़ी करीब आ गया। मुझे पुराने गानों का आज भी बहुत शौक़ है। मेरा रेडियो सबसे पहले डांट पढ़ने से शुरू होते हैं कि वाइफ कहती है कि पूजा की बात हो जाए, मैं कहता हूँ गाना ऑन करते हैं। तो मैं उन दिनों को, जब ये पुराने गाने चलते थे, आज भी कमाल की बात यह है कि उनके शब्द जो हैं आज भी इतने मायने रखते हैं, और कहीं आज के म्यूज़िक में शब्द नीचे चले गए और म्यूज़िक थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो बेहद खुशी है मुझे कि आपने एज ए बच्चे होते हुए उनके जो याद आपने बनाई है, तो मैं चाहूँगा कि इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक, पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद है। और मेरे लिए बहुत खुशी है कि मैं इस परिवार से जुड़ा हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजू अंकल। Hello and namaste to everybody and my respects to चित्रगुप्त अंकल। मुझे चित्रगुप्त अंकल के साथ में बहुत टाइम बिताने का मौका तो नहीं मिला, बट एवरी टाइम आई केम टू वर्क विद आनंद मिलन, उस टाइम पे उनसे मुलाकात होती थी। ही वाज, आई थिंक आपको उनके मैडम कौन है यार, बोलो ना मैडम। मिरर इमेज, सॉफ्ट वर्क में आप लोग भी वैसे। एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव यू ऑल एज फ्रेंड्स, because not only I have worked, but my father has worked with Chitragupta ji as a musician, Charanjit Singh, और जब
हमारे बीच में अंकल नहीं थे और हमारा आनंद मिलन का फर्स्ट टूर था विच वॉज इन लंडन एंड आई हैव सो मच ऑफ प्राइड फॉर यू ऑल बोथ दैट वो शो भी इन्होंने स्टार्ट किया था अंकल के गानों से एंड यू आर एन एग्जाम्पल कि हाउ किड्स शुड एक्चुअली हैव पेरेंट्स वैल्यू फॉर इंडिया. Thank you. Anybody else would like to say a few words? Arun Bakshi. नमस्कार टू एवरीवन. अच्छी संतान होना आज के युग में बहुत इम्पोर्टेंट बात है. माता पिता के नाम को आगे लेके जाना बहुत बड़ी बात है. एंड आई एम प्राउड दैट आई एम एसोसिएटेड विद आनंद एंड मिलिंद सिंस एजेस, क्योंकि इनका पहला जो टीवी सीरियल था करमचंद, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी. एक वर्ड गाने को मिला था करमचंद, और साथ में हमारे थे उदित नारायण जी, समीर साहब ने लिखा था एक ही वर्ड करमचंद. और उसके बाद वो बहुत बड़ा हिट हो गया था, हंसते हंसते हिट हो गया था. बड़ा अच्छे डायरेक्टर थे, या करम में या एग्जैक्टली. उसके बाद में यही 14th रोड, हमारा जन्म भी म्यूजिकली यहीं पे हुआ. पहला गाना था तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, वो भी समीर साहब ने लिखा था. आनंद मिलिंद का कमाल का म्यूज़िक था, और मैं इनके पापा से मेरा दुआ सलाम उनका पाँव छूता रहता था. इतना मेरा उनके साथ था, लेकिन उनका आशीर्वाद सदा रहता था. और उसके बाद छोटी सी इनिंग थी हमारी 300-400 गानों की, और आशीर्वाद यहीं से मिला था. बट कमिंग टू द सेम मोमेंट कि अच्छी संतान होना बहुत ही लाजिम है, और ये इन दोनों ने प्रूव कर दिया है कि अपने पापा को, डियर पापा का नाम इन्होंने रोशन किया. थैंक यू वेरी मच. Like all functions, there has to be a vote of thanks. There are two things: welcome address and vote of thanks. I was asking, willing to do that. वेंकट जी आप ही करो. मैं क्या बोलूँ? वैसे ही at the age of 78, I feel my life is blessed. In the sense, मैंने प्लानिंग ही नहीं किया था. आमिर साहब के लिए इस पार्क में, और अभी चित्रगुप्त के पार्क में, अभी हमारे म्यूजिक फील्ड में एक निकनेम भी मेरे को मिला है. मेरा नाम अभी चौकीदार बन गया है. Anyway, this is a very privileged opportunity bestowed. Thank you all of you for having come here and grace the occasion. Chitragupta deserves this. Even today also, when we hear his songs, Mitani, at least I automatically understand. That's the respect that we all have, what I am very happy that you all came. Grateful to all the people who have. And another thing which I am repeatedly saying, he has helped us. Otherwise, we were planning this where. Now, I would like to especially extend my gratitude to Vijay Zaveri sir, who was kind and generous to us. And also, I don't have his wife, we have been very close. And last but not the least, Mr. Sharad Ugade, Municipal Commissioner, also Alka Kherkar Madam, who accepted our proposal and got into the highest authorities and headquarters in the Thank you very much. Thank you. ओ सर साथ में सब लोग आ रहे हैं भाई केबल लगा लियो ना, केबल लगा लियो ना. हाँ बस बस बाय.
अपने काम चलना मंगल बाप रे बाप, कितने आ गए। रोल है या रोल क्या कहना चाहेंगे चित्रगुप्त जी के नाम पर यहाँ पर चौक पे उनकी तस्वीर लगी हुई है और ये एक बहुत अच्छा काम किया है आनंद मिलन ने। ये लॉन्ग ड्यू था और उन्होंने करके छोड़ा, ये बहुत अच्छी बात है। चित्रगुप्त जी मतलब इतने बड़ी हस्ती हैं, इतनी महान हस्ती हैं कि ये बहुत ज़रूरत थी इसकी। और इसी रोड पे रहते थे, 14th रोड पे। तो ये और यहाँ मैं बहुत आती थी, बहुत छोटी थी बट बहुत भोजपुरी गाने गाए हैं चित्रगुप्त जी के, तो यहाँ रिहर्सल्स के लिए आती थी मैं। तो ये जो रास्ता है ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे भी मैं जब इस रास्ते पर आती थी तो चित्रगुप्त जी को याद करती थी हमेशा। और अब तो खैर जब पास करूँगी तो रुक के थोड़ा नमन, 2 मिनट नमन करके निकलूँगी। चित्रगुप्त जी एक कंपोज़र तो जिस दर्जे के कंपोज़र थे तो सारी दुनिया जानती है कि क्या क्या गाने उन्होंने बनाए हैं। लेकिन वो बहुत ही अच्छे, सरल, बहुत प्यारे इंसान थे। क्योंकि मेरे लिए फादर फिगर थे, मेरे पापा समान थे। और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत इनकरेज किया, उनके बहुत गाने गाए, उनका बहुत आशीर्वाद मिला। और उनके थ्रू आनंद मिलन से मुलाकात हुई और पूरा हम दोनों का परिवार एक हो गया। मतलब काम तो होता ही था, गाने तो रिकॉर्डिंग होती थी, लेकिन हमारे परिवारों में अच्छी मित्रता थी। तो चित्रगुप्त जी से बहुत किस्से सुनने को मिलते थे, पुराने किस्से, और बहुत बातें होती थी, बहुत याद आते हैं। और हमेशा जब मैं याद करती हूँ चित्रगुप्त जी को तो मैं इंस्पायर होती हूँ। बहुत पॉजिटिव इंसान थे और आनंद मिलन से ऑफ कोर्स मेरा संपर्क बना हुआ है और बना रहेगा हमेशा। मैम, उनकी कोई फेवरेट सॉन्ग जो आपके दिल को छू गई हो ऐसा? उनके सारे ही गाने बहुत एक से एक बढ़कर गाने हैं, कोई एक निकालना बहुत मुश्किल है। सारे ही गाने उनके बहुत ही खूबसूरत हैं, एक से एक बढ़कर। इसको एक मेमोरी शेयर कर सकते हैं हमसे? कोई मेमोरी शेयर कर सकते जो आपकी बेस्ट मेमोरी हो लाइफ की? मेमोरी तो मैंने आपको बताई अभी कि हम लोग रिहर्सल्स करते थे, उसके बाद खाना पीना होता था, बहुत अच्छा खाना बनता था उनके घर पे। फिर आनंद मिलन और हम लोग गप्पे मारते थे बैठकर, चित्रगुप्त जी के साथ भी गप्पे मारते थे। वो क्या क्या किस्से बताते थे पुराने ज़माने की, कैसी रिकॉर्डिंग होती थी, क्या होता था। और तो वो सिर्फ काम तक सीमित नहीं था हमारा रिश्ता, उससे ज़्यादा था। बहुत प्यार करते थे और एकदम मुझे लगता था कि मेरे पापा हैं, मतलब उतना प्यार। और मेरे पापा और उनकी भी बहुत दोस्ती थी और हमारे परिवारों की बहुत दोस्ती थी और दोस्ती है। फाइनली में संजू रिलीज हो गई है, संजू रिलीज हो गई है, किस तरह का? संजू के बारे में यहाँ बात नहीं करना है, यहाँ सिर्फ चित्रगुप्त जी के लिए आए हैं बस। एक लेजेंड के नाम पे चौक बना, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खुशी की बात है कि आदरणीय चित्रगुप्त साहब एक वेटरन संगीतकार थे। उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो संगीत दिया है वो तो अमर है। और उनके गाने, उनका दिया हुआ संगीत हमारे दिल में हमेशा रहेगा। ऐसे संगीतकार के नाम से आज चौक का स्थापना हुआ है। तो मैं आनंद मिलन जी और उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिन्होंने ये कार्य किया है उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। मैं भी, चित्रगुप्त साहब मेरे पिता तुल्य थे और उनका आशीर्वाद मुझ पे हमेशा रहा है। आज मैं जो भी हूं वो उनका आशीर्वाद है, क्योंकि उन्होंने ही आनंद मिलन से मिलाया और क़यामत से क़यामत तक मुझे मिल गया। और पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, गाने आए, फिल्म हिट हुई और भगवान की कृपा से और आप लोगों की दुआओं से आपका उदित नारायण क़यामत से क़यामत तक से चल रहा है और चलता रहेगा। बस उनकी कोई फेवरेट सॉन्ग जो आप शेयर कर सकते हो, आपके दिल की करीब? मुझसे उन्होंने एक फिल्म में गवाया था, वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, बन गई थी फिल्म। मुझे 2 लाइन मैं सुनाता हूँ। दुनिया में तो
इंसानों का बस इतना ही नाता है, डाल पे जैसे बैठ के पंछी पल भर में उड़ जाता है। जी क्या कहना चाहेंगे सर, चंद्रगुप्त शौक के नाम पे, लेजेंडरी के नाम पे शौक के नाम रखा गया है? देखिए, ये तो मिनिमम है, एक चौक बनाई गए बहुत अच्छी बात है, मगर मैं इसको एंड नहीं बिगनिंग समझता हूँ। ये जो संगीतकार जो हुए हैं, जो इस तरह के गीतकार हुए हैं, जो इस तरह के गायक हुए हैं, इन्होंने हमारे जो कंटेम्प्रेरी कल्चर है उसको इतना एनरिच किया, उसको इतना बहुत कुछ दिया है। इनका संगीत जो है वो हमारा धरोहर है, हमारा कल्चरल हेरिटेज है, और हमने कोई एहसान नहीं किया इन पे, बल्कि हमने ये बताया है कि थोड़ी हमको भी समझ है, यही बताया बस, और कुछ नहीं। और एकेडमीज बननी चाहिए, इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए इन लोगों के नाम पे, और इनका काम जो है वो नई पीढ़ी को बताया जाए क्या है, और जो आज संगीत में आ रहे हैं उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहले कैसा काम किया गया, तो इससे उन्हें भी रूट्स मिलेंगी, जड़ें मिलेंगी, जो आज मुझे ज़रा कम दिखाई देती है। ओके सर, देखा जाए तो अब जो उनका फेवरेट सॉन्ग है वो बता सकते हैं, जो आपके दिल के करीब हो कोई एक? देखिए, मुझे एक गाना जो है चित्रगुप्त जी का, मजनू साहब का लिखा हुआ है, रफ़ी साहब का गाया हुआ है, फिल्म थी ऊंचे लोग, उसका एक गाना है जाग दिले दीवाना। वो कॉम्पोजिशन, वो ऑर्केस्ट्राइजेशन, वो रेंडरिंग, वो वर्ड, वो फ्लॉलेस, वो कमाल ही है। और मैं समझता हूँ कि अगर रफ़ी साहब जिन्होंने हज़ारों गाने गाए होंगे, उनके बहुत अच्छे गानों की लिस्ट बनाई जाए तो लिस्ट कितनी भी छोटी हो उसमें ये गाना आएगा। ओके सर, पॉप बॉटल्स की बात करें, फरहान साहब ने अभी जस्ट ट्वीट किया था, क्या कहना चाहेंगे, बीएमसी का काम नहीं कर रही है? अब देखिए, आप कहीं से कहीं जा रहे हैं, आपको तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक कोई कड़वी बात ना की जाए, तो फिर आज जाने दीजिए। ओके सर, फाइनली सर संजू देखिए, आप हाँ? संजू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, संजू फिल्म के बारे में। संजू फिल्म बहुत मैं राजकुमार हिरानी साहब का बड़ा एडमायरर हूँ, और बहुत अच्छा काम करते हैं, और एक बार उन्होंने फिर अच्छा काम किया। मैं राजकुमार हिरानी के बारे में हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि ऐसी फिल्में बनाने के लिए सिर्फ अच्छा डायरेक्टर या राइटर होना काफ़ी नहीं, अच्छा आदमी भी होना ज़रूरी है, और वो हैं। यार कैसे हो? सर क्या कहना चाहेंगे, लेजेंडरी के नाम पे चौक? ओह यस यस, बहुत मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं एक तो पुराने ज़माने का, मैं भी पुराने ज़माने का ही हूँ, और वो समय का सारा संगीत जो है मुझे बहुत पसंद है और मज़ा आता है। और आज भी मैं सबसे पहले रेडियो ऑन करता हूँ और उसमें सब पुराने गाने जो सुनाई देते हैं सारा दिन चालू रखता हूँ, तो मेरा संबंध म्यूज़िक से बहुत बहुत गहरा है। और चित्रगुप्त जी, नौशाद साहब, इन सब के गाने मैंने सुने हुए हैं, दिल से सुने हुए हैं। तो आज ये मौका मिला कि उस सभा में मैं भी हिस्सा हूँ जहाँ चित्रगुप्त जी के बनाए गाने सुनते थे, आज उनके साथ जिन्होंने काम किया हुआ है वहाँ उनके साथ बैठने का मौका मुझे मिला, तो मुझे बेहद खुशी है इस बात की। मुनीम जी मेरे पड़ोसी हैं, मैं भी वहीं रहता हूँ हीरा नंदानी में, उनसे बातचीत होती रहती है, बहुत नेक इंसान, अच्छे इंसान हैं, और मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके ये चौक यहाँ बना। और जैसे सबने कहा कि ये कितनी अच्छी बात है कि हम अपने पुरखों को याद रखें, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने सोसाइटी में बहुत अच्छे काम किए हैं। और संगीत से बड़ा क्या काम हो सकता है, जो लोगों के दिलों को छुआ है, लोगों ने इसे पसंद किया है। तो सब लोग कह रहे थे कि जगह से उनका एक बड़ा गहरा नाता है, तो मैंने जब बोला तो उसको ध्यान नहीं आया, तो बाद में मुझे याद आया कि मेरा भी बहुत गहरा नाता है इस जगह से। वो आपको कहूँ तो ये मुझे मेरी पहली फिल्म गर्दिश का जो साइनिंग अमाउंट था वो यहाँ मिला था SD बर्मन साहब के घर में, RD बर्मन साहब के घर में। तो गाने का वहाँ पे रिहर्सल थी उस दिन गाने की, और मुझे बुलाया गया और उनके घर में मुझे मिला वो साइनिंग अमाउंट। तो इससे इस एरिए के उस हिसाब से मेरा भी इस एरिए से बहुत बड़ा एक रिश्ता है। और बात सच है, क्योंकि जब आया था तो म्यूज़िकल हो या ऑफिस हो इसी एरिए में थे, इससे आगे ही थे। तो ये एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस एरिए में सब ने लोगों ने सीखा है, ज़रूर इस यहाँ कोई बात है।
तो मुझे खुशी है कि मैं आज हिस्सा बना इस अच्छे काम के लिए। तो मैं पूरी फैमिली को, मनीष जी, आनंद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। और आज बच्चे कितने खुश होंगे और मुझे लगता है उनके पिता भी आज बहुत खुश होंगे। फेवरेट सॉन्ग हमसे शेयर कर सकते हैं? अब मुझे एक गाना जो अभी बताया था, को दिल को मेरे कुछ कर गया मेरी तन्हाई में, ऐसा एक गाना था जो अभी उन्होंने बताया, वही गाना मुझे याद आ रहा था। तो गाने तो उनके बहुत हैं, तो इसलिए मैं यही कहूँगा आखिर में कि पूरी फैमिली को इस दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा से संजू रिलीज हो चुकी है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस हाँ। आपको किस तरह से लगा? मुझे बहुत खुशी है कि ये फिल्म लोगों ने बहुत पसंद की है और मुझे उम्मीद थी पूरी कि ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी। और मैं उसका, रणवीर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे बहुत अच्छा एक्टर लगता है वो, और सही कास्टिंग चुनी उन्होंने। और मैं एक्चुअली आज जाने वाला हूँ, तो मैं आज देखूँगा और मुझे खुशी है इस बात की कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा लाइनअप में अब बाकी रेगुलर मेरा साउथ इंडिया में मैं काम करता रहता हूँ। एक सीरीज़ कर रहा था हम पृथ्वी वल्लभ करके, वो ख़त्म हुई है। और अभी मेरी कुछ 2 पंजाबी फिल्में हैं जो वो शुरू हो रही हैं अक्टूबर में। तो जैसे जैसे जहाँ भी मुझे कुछ अच्छी चीज़ दिखती है और मुझे लगता है करना चाहिए, तो वैसे मैं कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट भैया, थैंक यू सो मच। Hi, I am Milind. This is Anand. Anand and Milind, we are composers in the industry. And this chalk is, we made this for our father, Chitragupta ji. और हम लोग ने काफ़ी वक्त तक इस पर वर्क किया और लगे रहे। एंड फाइनली ये दिन आया कि हम ये चौक इनॉग्रेट कर सके। जावेद साहब एंड आशीष शेलार जी अनवील किए इसको, इस चौक को। और हमें खुशी है कि बीइंग इन द म्यूज़िक फील्ड, सारे म्यूज़िक फील्ड के काफ़ी अच्छे हमारे दोस्त एंड डिग्नेटरीज जैसे उदित नारायण, अभिजीत, अलका याग्निक वगैरह वगैरह सब आए इस ओकेजन को ग्रेस करने। ये हम लोग ने डेडिकेट किया है अपने पिताजी को, श्री चित्रगुप्त जी के लिए। और ये मेरे हिसाब से हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उनका संगीत तो हमेशा यादगार रहा, लेकिन अब उनका नाम भी इस चौक के वजह से लोग हमेशा याद करेंगे। जब भी जाएंगे बहुत इज्जत से याद करेंगे। सर, अगर कोई उनकी यादें आप कुछ याद करना चाहेंगे कि एक तरह का मेमोरी है, लेकिन आपकी पर्सनल ज़िंदगी से कुछ अगर कुछ शेयर करना चाहें आप? हम लोग इसी रोड पे रहते थे, यहीं पैदा हुए, बड़े हुए। और यहाँ पर उनके इतने सारे रिहर्सल्स होते थे, मोहम्मद रफ़ी साहब के, किशोर कुमार जी के, लता आंटी जी, आशा आंटी, तलत महमूद, सारे के सारे। तो वो आज पूरा रिवाइंड जैसे हो गया और सारी यादें एकदम ताज़ा हो गई। हम लोग यहाँ पर एक्चुअली पापा शिफ्ट हुए थे 1959 में, और यहाँ पर हम लोग रहे 1993 तक। पापा चित्रगुप्त जी का देहांत 1991 में हुआ, जनवरी में। और उन्होंने वी लिव्ड ऑल आवर लाइफ हियर। तो हमारे बहुत सारे मेमोरीज इस रोड से और इस म्यूज़िक रूम से अटैच्ड हैं। अरविंद, थैंक यू। थैंक यू। अरविंद उनको लेने